आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 2। कल हम लोग yesterday we have completed unit 1. Okay. Yes, If you sir. attend my class, then you know that we have completed unit 1 of marketing management. Now we will going to start unit 2. In unit 2, we will going to learn and understand the behavior of buyers. What is the buyer's behavior? We will understand the logic and psychology of the behavior of buyers. Then determinants consumer buying process and सर models. कंज्यूमर After that, मार्केट क्या चाहिए ये बोल सकते हैं क्या? क्या समझ में नहीं आया? सर जो बायर्स होते हैं उन्हें मार्केट से क्या खरीदना क्या नहीं उनकी डिमांड बोल सकते हैं बिहेवियर बायर्स में। हाँ, बिहेवियर बोल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, इसे बोल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, मॉडल फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंग बिहेवियर, ओके, stages of buying process, organizational buyer behavior. Lot of behavioral process we're going to learn in this marketing management. Okay, let us start now. Let's just start in the first slide. In the second slide, we're going to learn the buyer behavior. Okay, what does it mean? Behave, it is refers to the decisions or actions made by consumer when purchasing product or services. Okay. You see, lot of things you need to understand. Okay, you cannot see only the one angle of buying process. That will be not be fine, or that is not the limited one. You need to see the every angle of buying. Suppose, say for example, I am giving your example as because then only you can understand the simple thing. Okay, suppose the one part of buying process, I'm going to tell you that. Suppose you are with your families going to visit any mall, wanted to buy some for purchasing of clothes and uh, clothes. Okay, so before that, you made a budget of this thing with your families that this should be the budget. Okay, we will not exceed our budget within this particular price. You have fixed a particular price on that. Okay, after that, you with your family visit to the PM mall, but suddenly, after reaching there, when you see that the different qualities of different textures of different colors of clothes there, then suddenly you and your family change your mind. That is also a factors. That is also a buyer's behavioral factors. Okay, it means that according to the situation, your decisions, your purchasing behavior fluctuate from one stage to another stage. Understand my point of view? Try to understand my point of view. Okay, understand. Another buying behavior is that you don't know the exact price of, say, for example, of any particular goods. You are carrying money with you. Okay, you are carrying cash with you, and after reaching there you find that whatever the budget you have prepared to buy some particular product, it exceeds more than that. That is also behavioral process. Now what will be your situation, whether you could buy it or you could come turn around and come to your residence? That is also another behavioral process. So customer behavior or buyers means customer only. Customer behavior cannot stick at particular point. Sometimes it exceeds the budget. Sometimes it's up to the fixed. Okay, this is called the buyer. Product or services. Understand my point? Have you got it? My point. Then the determinants of buyer behavior. Now, see, as I have told you with giving your example, now see what are the determinants of buyer behavior. First one is cultural factor. What is this cultural factor? Culture, subculture, social class. Now, these three are very much distinctive or distinct from each other. Now, social factor reference to group family roles. Okay, personal factors, age, occupation, lifestyle, and psychological factor, motivation, perception, learning, economic factor, income, price, sensitivity. I can give you each and every example of these factors.
Okay, I can give you each and every. Say, for example, cultural factor. Cultural factor comes, I'm sorry, social factor or cultural factors, you can count it in one groups only. Okay, cultural factor, social factor, subculture, it's counted in one group only. That comes under cultural factor. Now, social factors refers to the group, family, preference group, family's role. Now, I'm going to give you example. As I have given you the example of first condition that uh, you decided to go out with your family to visit a nearby shop, purchase some clothes. Okay, and with your all family decisions, they have selected the particular budget for that. That within this budget, we will going to purchase the cloth. We will never ever going to exceed the amount of our budget. We will never going to exceed the budget, our budget. What will be the whatever the pocket permits that much, with that within that much capacity, we will going to purchase the clothes. This is the decisions. Who is going to take the decisions? Every members in your group, your father, mother, your sister, brother, whosoever they are in your group, they all decided that we will going to purchase the amount of the clothes within this fixed amount. Okay, we're not going to exceed or cross this amount. Okay, this comes under social factor. Okay, this is another condition of a buyer. Next is personal factor. It depends on age, occupation, and lifestyle. Now, being an you are an now being you are in the adolescent age. Now you have your personal preferences. You have your personal choices. Oh, okay. So according to that, the budget will again going to fix. Sometimes budget will going fix according to your choice, according to your preferences, according to your age. These comes under personal factors. Okay. Now, in this personal factor, there is another important part which is called occupation factor. Which company, in which area you are working? What will be the salary? What is your salary? Whether your salary permit to buy this expensive goods, expensive clothes or not. This also another factor which comes under personal factor. Then your lifestyle. Somebody's lifestyle is there, as I have discussed in previous slide, or in marketing management, which is unit 1, that some preferences only branded qualities, some preferences only branded quality, and some are going with simple. Okay, no brand is required, only good quality of clothes is okay for them. Okay, so this also comes under personal factor. Now, psychological factors. Suppose in your friend circle, somebody motivates you. Okay, go to that particular mall. You will can find it out that there is a big, good, large collections is there. Very good qualities of clothes are available over there. Some motivates you. Okay, being motivated by somebody else, you visit to that mall. Okay, and try to purchase. That is not your choice, that is not your motivation, but somebody else motivated you to purchase those clothes. This is also a complexity of a bias. Okay, another somebody motivated in your friend circle, somebody motivated in your family circle, somebody motivate you, your relatives motivate you to buy this particular product. Okay, from so company, or some for such sorry, some such shop you can purchase those. So these are motivation. Now, perception, this comes under your own thought process. This comes under your own thought process. Whosoever motivated you, but final decision is your. Whatever the decisions that comes to your mind, you are going with your perception, your decisions only. Okay, that is called for psychological factor. And another one is learning, experience. Okay, experience. So if I purchase this kind of clothes, then it will be help for me to wear it in summer season. Okay, and apart from that, in rainy season also, this cloth will go on. So this type of things is called learning, and it comes out of experience. Okay, it come out of experience. This also comes under psychological factor. And economic factor is another important part, which comes under your income, your status,
your living lifestyle, your price sensitivity. Okay, this all comes under economical factor. So these are the determinants of buyer behavior. These all are the behavior of a buyer. So what are the behavior of a buyers? If the question comes, your answer should be cultural factor, social factor, personal factors, psychological factor, and economical factor. These are the five important factors which we determines the buyer behavior. Understand, Tanuja and whosoever Abhijit, if you join, that understood your every points is clear to you. कोई डाउट नहीं है सर मैम? नेक्स्ट स्लाइड। सर मैं मुझे पहले से थोड़ा समझा दीजिए ना, क्योंकि हम थोड़ा लेट ज्वाइन किए। तो पहले तो यही तो स्टार्ट किए, पहले और कुछ नहीं था। नहीं सर, ये पहला कुछ नहीं था, पॉइंट पहला सब मैम ने ओके। कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया बताओ? नहीं नहीं, पॉइंट सर क्लियर हो गया। ऊपर में जो है कौन आपका अच्छा, ये बायर का डेफिनेशन। हाँ हाँ हाँ, बायर हम का लास्ट में डेफिनेशन, ज्वाइन किए, जब पॉइंट ठीक स्टार्ट है हुआ मैं हम बता, तब ज्वाइन किए थे। ठीक है। बायर का डेफिनेशन का मतलब होता है बायर जो कि अपना एक्शंस, अपना डिसीजंस, कुछ भी खरीदने से पहले वो इस तरह का डिसीजंस लेते हैं, कुछ एक्शंस करते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर परचेजिंग और कंज्यूमिंग एनी प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड द बायर। बायर का डेफिनेशन क्या है? एक कंज्यूमर, कस्टमर का डेफिनेशन क्या है? जो खरीदार होते हैं, खरीदार का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसा खरीदार जो अपना एक्शंस से, जो अपना बिहेवियर से, अपना डिसीजन से कुछ सामान खरीदते हैं, उसे बायर कहते हैं। बस यही था। बायर का डिफरेंट बिहेवियर होता है जो मैंने आपको पढ़ा रहा था। पहला है कल्चरल फैक्टर्स, जिसमें सब कल्चर, कल्चर क्लास आ जाता है। सोशल फैक्टर्स जो रेफरेंस ग्रुप, फैमिली। पर्सनल फैक्टर जो कि एज, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल। साइकोलॉजिकल फैक्टर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग। और इकोनॉमिक फैक्टर जो कि इनकम, प्राइस और सेंसिटिविटी में आता है। आया समझ में? क्लियर है? अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, अभी कोई और डाउट नहीं है ना? ओके। ओके चलो ठीक है। कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। अब खरीदार जो खरीदारी करता है उसका प्रोसेस क्या होता है? कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर जो खरीदते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस? पहला है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, आइडेंटिफाइंग अ नीड और वांट। देखो तनुजा एंड अभिजीत, टू बोथ ऑफ यू हम टेलिंग, हम जो भी घर में सामान आपका है ना, ये मतलब कि जब जरूरत पड़ती है, प्रॉब्लम होता है, तब उसका सोल्यूशंस निकालने के लिए हम खरीदारी करते हैं। और कुछ कुछ सामान जो होता है वो हम शौक से खरीदते हैं। पहला, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ रेफ्रिजरेटर एट योर होम, देन व्हाट डज इट मीन? यू हैव परचेज इट और योर फादर परचेज इट और because of a motivation or because of a what you can say, because of just as a fun, just as a status, he has purchased the fridge. No, maybe mother find difficult to store the vegetables, store the food items in during the summer season, because if means the because of during this hot and humid conditions, the food products or the vegetables get rotten. It's because of this problem, the guardians or the family member, the head of the family member, try to purchase the fridge. This is one factor. So always remember, whatever we purchase just to identify the need and want, so that we can fix the problem. हम प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हम कोई सामान घर में खरीदते हैं। जो भी सामान हमारे घर में है, चाहे वो कूलर हो, एसी हो, फैन हो, रेफ्रिजरेटर हो, वॉशिंग मशीन हो, गाड़ी हो, या फिर अलमारी हो, जो भी है हमारे घर में, देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अराइज हुआ है। उस प्रॉब्लम को समाधान करने के लिए हमने वो गुड्स खरीदा है। ऐसा बहुत कम होता है जो कि हम शौक से खरीदते हैं। बगल के घर में है तो मुझे भी खरीदना पड़ेगा, जबकि उसका जरूरत नहीं है। हाँ, कब हो सकता है ऐसा? सपोज से फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन रेफ्रिजरेटर इन माई होम, डबल डोर रेफ्रिजरेटर इन माई होम,
but being a but want to keep a high status in the society, I purchased another one. तो ये जो नेक्स्ट वाला जो मैंने खरीदा है, ये मेरा एक स्टेटस दिखाने के लिए, मैं अपना को शो करने के लिए इन द सोसाइटी दैट आई एम ऑफ अ हाई क्लास सोसाइटी, आई हैव परचेज दैट. जैसे बाइक्स, आई फाइंड लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर क्रेजीएस्ट अबाउट बाइक. अभिजीत, तुम ये चीज कभी गौर किया है? 6 महीना बाइक चलाने के बाद वो बाइक बेच देते हैं, दूसरे बाइक लेके आते हैं. 6 महीना चलाने के बाद या 1 साल 2 साल चलाने के बाद चार चार चक्का गाड़ी होता है वो बेच देते हैं, दूसरे वाला लेके आते हैं. यस सर. एकदम तुम एक्चुअली मिला क्या, मैंने. सोसाइटी में मतलब कि टॉप में रहने के लिए उनका हाँ वैल्यू सोसाइटी, टॉप में रहे, हाँ स्टेटस वो, मेंटेन करते हैं. हाँ स्टेटस मेंटेन करते हैं. देखिए, मैं 6 महीना 1 साल से ज्यादा गाड़ी यूज नहीं करता हूँ, बेच देता हूँ. पहले खरीदा बलेनो, बेच दिया बलेनो. उसके बाद खरीदा जीप, वो बेच दिया. थार खरीदा, उसको बेच दिया. फिर सफारी लेके आया, बेच दिया. इनोवा लेके आया, बेच दिया. अभी फॉर्चुनर चला रहा है. मैंने जो अभी बताया ना, द करंट एग्जाम्पल आई हैव सीन इन माई सोसाइटी. आप आओगे तो आपको मैं घर दिखा दूंगा. मतलब so much crazy. When I asked that person, what he answered me is that, well, sir, it's very difficult for me to continue with this car for 2 years, with the same car for 2 years. मैं 2 साल से ज्यादा इस गाड़ी में, कोई भी गाड़ी में नहीं बैठ सकता. पता नहीं फॉर्च्यूनर करने के बाद हेलीकॉप्टर ही खरीदेगा शायद, मुझे लगता है ऐसा है. इस तरह का क्रेजीएस्ट है. जरूरत नहीं है, चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर वो कर उस चला. तो ये क्या है? ये एक शौक है, हम कह सकते हैं शौक है, या फिर उसका कोई ऐसा कुछ हॉबी है. आई कैन कॉल इट एज अ हॉबी. ठीक है. और नहीं कह सकते कि सोशल, जैसे तुमने कहा, अपना सोशल सोसाइटी में अपना स्टेटस को बरकरार रखने के लिए वो ये सब करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ अ फन. नीट कुछ भी नहीं है. नीट पहले गाड़ी जो था वही उसका नीट था. बाद में जब चेंज करते रहा, दूसरा आया, वो नीट नहीं था. वो अकॉर्डिंग टू द यस सर. सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ अ सोसाइटी. हमेशा याद रखना एक चीज, ये क्वालिटी बिहेवियर का, बायर्स का बिहेवियर. जो पहला सामान हम खरीद घर में खरीद के लाते हैं, कोई भी सामान हो, खाने पीने का सामान छोड़ के, कोई भी ऐसा सामान जो कि हमारे जरूरतमंद को पूरा करता है, वो चलता ठीक है. लेकिन उसके बाद जो हम खरीद के लाते हैं, वो फिर जरूरत नहीं होता, वो हमारा शौक होता है. इट्स अल्टीमेटली आवर पैशन टू बाय दैट प्रोडक्ट, to buy that good, whatever the goods is, electronics, electronic items, car, whatever. Okay, that is our hobbies. That is our you can passion to purchase that. Okay, तो आदमी का जरूरत जो होता है एक बार होता है, एक प्रोडक्ट के लिए एक बार होता है. मुझे कपड़ा धोने के लिए वॉशिंग मशीन चाहिए, आई हैव टू परचेज. वो मेरा हो गया, पूरा हो गया. अब मुझे अगर उसमें थोड़ा सा कस्टमाइज करना है, मुझे बड़ा वाला चाहिए, कस्टमाइज करना. अभी तक तो यहाँ, अभी रिसेंटली एक एड आया है जिसमें दिखा रहा है कि वॉशिंग मशीन में अभी जो नया है, वीडियोकॉन ने लॉन्च किया है, उसमें कपड़ा प्रेस होके आयरन होके आ जाता है. 1 लाख कितना का वो मशीन है. इट्स अ बिग ह्यूज, जस्ट लाइक एन अलमीरा मशीन. मतलब गर्म पानी से लेके ठंडा पानी में जैसा, अकॉर्डिंग एआई टेक्नोलॉजीज उसमें इनबिल्ड है. मींस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ अ क्लोथ्स, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, वो सब कुछ इनबिल्ड अंदर है. आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिटर्जेंट या फिर लिक्विड डाल दीजिए, वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा. अपने अकॉर्डिंग पानी, सब कुछ, वाटर लेवल, वो सब कुछ अपने लेगा. यही नहीं, कपड़ा पूरा सुखा देगा, मेक इट ड्राई, एंड आफ्टर कीपिंग इट, मेकिंग इट ड्राई, वो आयरन करके वो कपड़ा निकालेगा, वो प्रेस हो जाएगा, निकलेगा आयरन. तो एआई टेक्नोलॉजीज कितना बढ़ गया. तो अगर मैं वो मशीन लेके आता हूं, इट मीन्स दैट वो मेरा पैशन है, वो मेरा शौक है, वो मेरा जरूरत नहीं है. इट कैनॉट बी काउंटेड एज माई जरूरतमंद. नो, इट इज माई पैशन कि मुझे वो लेना है. ठीक है. दिस इज द कॉल्ड द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस. नेक्स्ट आ जाते हैं इंफॉर्मेशन सर. तो मुझे समझ में आया? यस सर. इंफॉर्मेशन सर्च जो मैं बोल रहा हूँ ना, कम से कम वो चीज ना एक बार कम से कम अपने में रिलेट करके देखना, मैच करके देखना, सर सही बोल रहे कि नहीं. अगर नहीं तो उस चीज को कम से कम बोलो. घर पे कब इनवाइट करेंगे? नहीं समझ में नहीं आता मुझे, क्या बोल रही हो? सर मैं सोच रही थी कि आप हम लोग को घर पे कब इनवाइट करेंगे. क्यों, किस लिए?
वो चीज को रिलेट करने के लिए सर, देखने के लिए। क्या चीज किस लिए घर बुलाऊंगा? व्हाट इज द रीजन? सर अभी आप ही ने तो बोल रहा है कि आप लोग मेरे घर आओगे तो मैं दिखाऊंगा तो आप लोग बहुत एग्जाम से रिलेट कर पाएंगे, इसलिए पूछ रहे नहीं, हैं। मैंने कहा कि मेरे मोहल्ले में द प्लेस आई एम रिसाइडिंग, वहां पर एक ऐसा घर है, मारवाड़ी फैमिली है। उस फैमिली को आप भी देखिएगा ना, आप भी कभी कभी हंस पड़िएगा, ठीक है? उनके मतलब they are very the craziest person I have find in my thing, and it's entertaining. They are entertaining. Every morning they used to go for a morning walk, husband and wife. After coming from that, they used to sit in the veranda. But look at their lifestyle. They used to have a big talk. Nothing to lose now nowadays. All family members and the boy, their children, all are settled in abroad. Only both of Buddha and Buddhi is staying over there. Okay. Sometimes some relatives are coming. That's too residing in Sonali areas and all. Uh, घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है। एक कुक है, वो सब खाना बना देती है। एक बर्तन धोने वाला है, वो कर देती है। एक झाड़ू और एक कपड़ा उठाने वाला, जो झाड़ू देता है वो कपड़ा उपड़ा ये सब काम करता है। 3 to 4 वर्कर्स आर देयर। तो दिन भर बैठा गप्पे लड़ाना यही उनका फिर मॉर्निंग होगा 5 बजे, फिर हम आपको पढ़ाते रहेंगे, ठीक 5 बजे यहाँ से निकल के जाएगा मॉर्निंग वॉक पे, मतलब इवनिंग वॉक करने के लिए। दिस इज द वे दे आर यूजिंग द डूइंग देयर लाइफस्टाइल। एंड द मोस्ट क्रेजिएस्ट पार्ट इज दैट every weekend whatsoever they used to purchase a new clothes. Okay, shopping जाते हैं। हमारे यहाँ तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर तो बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स है, एकदम नजदीक पड़ता है। तो used to go there, they used to purchase the clothes. This is the way they used to pass their time. And another one of the craziest thing is that about the cars. They are very car passionate, car lovers. Okay, every years they change their car. उनका एक मतलब एक सुपरस्टिशन ये कि क्या मन है कि 2 साल से ज्यादा उस गाड़ी का कोई भी जितने भी गाड़ियों ये नहीं करा। तो बलेनो से स्टार्ट किया था, बलेनो। तो बलेनो से स्टार्ट करने वाला अब फॉर्च्यूनर में आके रुका हुआ है। अब जानते नहीं है कि नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, क्योंकि 1 साल हो गया गाड़ी का। सी सीरीज का गाड़ी है, डी सीरीज का गाड़ी है, 1 साल लगभग हो गया है कंप्लीट। हाँ, उसके बाद पता नहीं अब बूढ़ा डिफेंडर चला हुआ है, दिमाग खराब है अभिजीत। डिफेंडर ड्राइवर रखा, फॉर्च्यूनर चलाने के लिए ड्राइवर रखा हुआ है। ड्राइवर फोन करके पागल कर देता है, आइए कब से बुला रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, आते नहीं हो। ठीक है, आप डिफेंडर ले सकता है, लेकिन चलाएगा कौन पहले बताओ? ड्राइवर को बुला बुला के तंग हो जाता है, फिर जाके ड्राइवर आता है। तो परमानेंट रखने का कोशिश करता है ड्राइवर, पर कोई भी ड्राइवर टिकता नहीं है। नहीं टिकेगा ना यार, ड्राइवर क्या है, जिसको ज्यादा पैसा मिलेगा वो कोई एक जगह रहेगा नहीं। ड्राइवर दे आर फाइंड। तो मैंने इसलिए बुलाया था कि कभी बुलाएंगे तो ये चीज तुमको दिखाएंगे, देखना मार्केटिंग मैनेजमेंट तुमको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली। ये मैंने कहा तुम भी अपना मोहल्ला में थोड़ा सा छानबीन करो, तुमको भी मिलेगा पक्का। ऐसा है, दुनिया में ऐसा इंसान है पक्का। ओके, after that there is another one is information search. What is that? Gathering information about opinions. Okay, सपोज आपके घर में कोई रिलेटिव आया, किसने कहा कि आप ये एलजी का टीवी मत लीजिए, एलजी अभी थोड़ा सा डाउन हो गया, एलजी का पार्ट्स मिलता नहीं है, आप सैमसंग का टीवी ले लीजिए। ये ओपिनियन हुआ। अब आप उस ओपिनियन के लिए आपने गूगल रिव्यूज किया, अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा, अपने कॉलीग से पूछा, कभी शॉपिंग मॉल चले गए, वहां पूछा कि मैं एलजी के बगैर सैमसंग लेना चाहता हूँ। एलजी का पार्ट्स फिलहाल अवेलेबल नहीं होता है, उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद मंगवाया जाता है। बहुत लेंदी प्रोसेस है। यू नीड टू मेक अ कंप्लेन इन कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम विल गिव यू द कोड नंबर। अकॉर्डिंग टू दैट कोड वो वहां से मिस्त्री आएगा, देखेगा, उसके बाद वो ऑर्डर वहां पर देगा। आपका 2 हफ्ता लगेगा वो टीवी बनने में। तो दैट इज फॉर द रीजन क्या है, बहुत जन अभी एलजी को छोड़ के सैमसंग का टीवी भी खरीदते हैं। तो क्या हुआ, मैंने ओपिनियन दिया, आपने मेरे ओपिनियन को पूरा रिसर्च किया। कहाँ पर? बगल वाला से पूछा, मोहल्ले में जो आपका जानकारी है उनसे लिया कि आपके घर में कौन सा टीवी आप लगवाते हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ इट। कौन सा लगवाया आपने? अच्छा ठीक है, वहां से पता हो गया, आप सेटिस्फाई नहीं हो। गूगल में रिव्यूज देखा, वो भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, आप सीधा स्ट्रेट दुकान चले गए, वहां पर जो सेल्समैन है उनसे आपने पूछा। तो दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सर्च। इस तरह से इंफॉर्मेशन सर्च किया जाता है। नेक्स्ट है इवेल्युएशन एंड ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कंपेयरिंग ऑप्शंस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देख, इसका जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं, हंसना मत।
डोंट लाफ। ये जो कंपेयरिंग ऑप्शंस है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बहुत खतरनाक और डेंजरस चीज है कंपेयरिंग करना। कंपैरिजन में जिस दिन आदमी उतर गया ना, उस दिन तो बड़ी खतरनाक हो जाता है। देखिएगा, कुछ हमारे हमारे रिलेटिव्स में, we we being a Bengali families, okay, we have this culture, comparison culture, especially in occasion of a marriage, especially in occasion of a parties। एकदम मैं अपने कल्चर्स के बारे में जानता हूँ, आई नो वेरी वेल, बिकॉज आई एम बिलोंग टू फ्रॉम दैट कल्चर ओनली, सो आई कैन रिलेट। whenever we have any functions, oh okay, anywhere in our own home or somewhere else, some invitation is there, okay, some one of my relative got married in this, you need to come, we used to go there, okay, then there is a comparison start, especially not with the boys, because we used to wear a pant and shirt and shoes, that's all, tuxedo, that's all. But the problem comes with the woman, the jewelries part, okay, the jewelry part. Now there is a comparison start about the jewelries, okay. Oh, this is the bangles I'm wearing, this is the necklace I'm wearing, it price is this, what is your price of the necklace, what is the price of your necklace, what is the price of your jhumka, the comparison start. Now, one of the most funny part is that if some sensitive what you can say relatives are there na, they started frowning। फ्राउनिंग का मतलब क्या हो गया बोलते, अंदर ही अंदर जलना। उसने 1 लाख का गहना पहना हुआ है, उफ, मेरा हस्बैंड को क्या, वो हस्बैंड के साथ घर में झगड़ा करने। ये शादी ब्याह के पार्टीज में तुम देखना ये सब चीजें होती है। एकदम पक्का वो किसी कोने में अपने हस्बैंड को लेके जाएगा, वहीं पर ठूस वहीं पर ठूसने लग जाएगा, बोला क्या क्या जी, 1 लाख आप दे नहीं सकती, इतने साल से नौकरी कर रहे, देखो तो मेरा ननद वो पहन के आई है, मैंने क्या पहना हो, शुरू वहीं पर होगा ही होगा, कम क्या आई एम टॉकिंग अबाउट माय बंगाली कल्चर्स, आई नो वेरी वेल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग, मैंने इसलिए एग्जांपल दे पा रहा हूँ। आई डोंट नो अबाउट द अदर कल्चर्स, बट हमारे यहाँ ये सब चीजें जबरदस्त होता है यार। वो झगड़ा भी हो गए हुए बगैर शादी ब्याह होता ही नहीं है, वो एक पार्ट है, अगर नहीं हुआ मतलब ठीक ठाक शादी ब्याह नहीं हुआ, होना ही है, कुछ ना कुछ नोक झोंक टक्कर। पार्ट सर, मतलब हम लोग तो उसको रस्म मान लिए हैं। हाँ, वेरी गुड अभिजीत, यस, बिकॉज यू आर ऑल्सो फ्रॉम अ बंगाली फैमिली, दैट वाई अंडरस्टूड। तो क्या है कि वो हम लोग का रस्म पार्ट हो गया, करेक्ट, वो हमारा रिचुअल्स में आ जाता है कि बगैर झगड़ा हुए अगर कोई शादी ब्याह हो जाता है बंगालीज में, मतलब क्या है, वो शादी ब्याह में गिना नहीं जाता, मतलब वो हो गया, उसका अशुभ हो गया, होना ही है। चाहे तो वो खाना खाने में होगा, चाहे वो अब रहने के लिए होगा, चद्दर ठीक नहीं डाला है, तकिया ठीक नहीं है, देखो उसको अच्छा वाला तकिया दिया, मुझे ऐसा वाला तकिया दिया, मैं क्या कम नौकरी वाला करता हूँ, मेरा इतना सैलरी है, 1 लाख रुपया सैलरी है, मुझे ऐसा मतलब जबरदस्त। समटाइम ये सब मैं मजा लेता हूँ यार, बहुत हंसी आता है, आई यूज्ड टू लाफ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन ऑप्शंस। द सिक्स समझ में आ रहा है ना अभिजीत तनुजा? ये सब यस सर। मार्केटिंग क्लास में एचआरएम तो फिर भी थोड़ा बोरिंग से इसमें मजा आ रहा है। एसआरएम बोरिंग था? मैंने ऐसा कोई पेपर नहीं पढ़ा जिसमें तुम बोरिंग हो जाओ। सर वो थोड़ा लाइक थ्योरी था ना, ये मार्केटिंग में थोड़ा अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से मार्केटिंग में मजा भी आता है, सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, अगर मैं इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा रहा हूँ देन वो अलग बात है, लेकिन हाँ अगर ऐसे मैं बोरिंग समझ के पढ़ाऊँ तो तुमको ये पेपर भी पूरा बोरिंग ही लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। जिस तरह से प्रेजेंटेशन है इसमें एक्सप्लेन कुछ नहीं किया गया, सिर्फ पॉइंट्स अगर मैं बता दूं तो तुमको उतना पॉइंट्स क्लियर नहीं होगा, याद नहीं रख पाओगी। यहाँ पर मैं पॉइंट्स आपको एग्जाम्पल के तौर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज वाई यू फाइंड इट वेरी फनी एंड वेरी इंटरेस्टिंग इन मार्केटिंग पेपर, ओके, बिकॉज द एग्जाम्पल्स दैट आई एम गिविंग यू दैट आर फनी। मैं खुद हंस रहा हूं तो तुमको क्या बोलूं, ठीक है, एग्जाम्पल्स आई फाउंड इट वेरी फनी। ओके, कंपैरिजन ऑप्शंस आ गया, उसके बाद परचेज डिसीजन, कंपैरिजन करने के बाद परचेज का डिसीजन आ जाता है कि कौन सा क्या लेने वाला हूँ, वो होता है। नेक्स्ट है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, इवैल्यूएटिंग डिसीजन सेटिस्फेक्शन। प्री परचेज होता है, पोस्ट परचेज होता है। प्री परचेज हम कब करते हैं, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव आप देखे हो? मैं तो अपना मोहल्ला में अक्सर देखता हूँ, हाई यस सर। सोसाइटी वाला मोहल्ला है,
मतलब महीने में आप 2-3 महीने में नहीं, 2 महीने में आपको 1-2 बार टेस्ट ड्राइव हमारे मोहल्ले में चलते हुए दिख जाएगा आपको। एकदम, ये गाड़ी बुला के टेस्ट ड्राइव हो रहा है, वो गाड़ी, दैट इज द प्री परचेज प्रोसेस। पोस्ट परचेज प्रोसेस अनदर वेरी फनी इंसिडेंट। वो हो जाता है पूरा, इनविटेशंस, रिलेटिव्स आर गेट इन्वाइटेड, आज मैंने ये लिया है, चलो एक साथ आज मंदिर जाएंगे गाड़ी का पूजन करवाने के लिए। तो रंकिनी मैदान बोल रहे, रंकिनी मंदिर चले जाते हैं। कभी कभी एक मांगो में और एक और मंदिर है, वहां भी पूजा वूजा करवाते हैं, तो वहां चले जाते हैं कभी पूजा करवाने के लिए। तो प्रसादी मिल जाता है, बहुत बढ़िया प्रसादी मिलता है, पैकेट्स आ जाते हैं लड्डू का। दिस आर फनी यार, आफ्टर ऑल फनी, एंजॉय, दिस इज द कॉल एंजॉयमेंट। यस एंजॉयमेंट, लड्डू का पैकेट आ गया, एकदम घर में आ जाओ, लड्डू मिलेगा ही मिलेगा, रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज एवरी 2 months 3 months alternate somebody in my locality started to have a test drive. This is called the competition. Okay, this is called the post purchase evaluation or pre purchase evaluation. आया समझ में कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस? यस सर। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं मॉडल्स ऑफ बायर बिहेवियर। मॉडल्स ऑफ बायर बिहेवियर, व्हाट इज दैट? अडीडा मॉडल। व्हाट इज द एडिडा मॉडल? एडिडा का फुल फॉर्म होता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। देखो यहां पर मैंने लिख दिया है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। बाइंग प्रोसेस का पहला मॉडल है अडीडा मॉडल। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। अब इसका एग्जाम्पल ना वो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं, लेकिन वो इस क्लास के लिए उचित नहीं है। ये, अरे क्या हुआ, मैम ने बदल दिया। एडिडा मॉडल जो होता है, पहले अटेंशन पाना, उसके बाद इंटरेस्ट लगना, उसके बाद मन में शौक आना, उस शौक मतलब शौक आना, उसके बाद एक्शन हो जाना। ओके, दिस इज कॉल्ड अटेंशन। जैसे क्या होता है, द बेस्ट एग्जांपल इज दैट, जैसे शादी का पहला रस्म मैं समझाता हूँ आपको, ये एग्जांपल उसी से रहेगा। पहले अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या, फैमिलीज में देखा जाता है कि अरे यार ये बहुत अच्छा कल्चर वाला फैमिली है, लड़का कमाने वाला लड़का है, बहुत सुशील लड़का है, समझदार लड़का है, चलिए हम लोग जाके बात करते हैं, बेटी तो अभी शादी के लायक हो गई है, चलो हम लोग बात करते हैं, लड़का बहुत अच्छा है। तो पहले अटेंशन, उसके बाद इंटरेस्ट, धीरे धीरे इंटरेस्ट लेने लगे, 1-2 बार जाना आना जाना हुआ, ठीक है। उसके बाद डिजायर, काश मेरी बेटी उस घर में जाता, फिर शादी होता, उसके बाद एक्टर, उसके बाद शादी किया हो जाता। तो अडीडा इसी प्रोसेस में होता है, ठीक है। पहले मन में अटेंशन जागना, किसी सब उसके फॉर एग्जाम्पल कि किसी के घर में जाके आपने देखा कि ये इंस्ट्रूमेंट, फर्नीचर, सोफा और एनी अदर आइटम्स, यू फाइंड इट वेरी वेरी distinguished, that product is very distinguished, executive or exclusive, not executive, sorry for the wrong pronunciation, exclusive product for you. Okay, now you find that if I purchase that particular kind of sofa, एक लेदर बेड का सोफा कवर है, एक लेदर का सोफा कवर है, ब्लैक सोफा, बहुत जबरदस्त दिखने में, आपका घर का पूरा व्हाइट पेंट, बड़ा घर है, फ्लोर व्हाइट मार्बल है, या फिर थोड़ा सा हल्का व्हाइट और ब्राउन का मार्बल है, उसमें ब्लैक कलर का एक सोफा, कितना जबरदस्त लग रहा है, जब रात को एलईडी बल्ब जलाते हो जबरदस्त लगता है, ठीक है। तो आपने इसको पहले अटेंशन दिया, उसके बाद आपका इंटरेस्ट जागा, उफ यार काश मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद आपका डिजायर हुआ कि चलो मैं जाता हूँ, इसको छानबीन करके लाता हूँ, कितना पड़ रहा है देख लेता हूँ, अगर लेने की सामर्थ है भी नहीं तो देखता हूँ थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट में अगर मिल जाता है तो ले लूंगा। सोचो 25,000 पड़ा तो ठीक है, उससे ज्यादा हुआ तो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट करवा लूंगा। उसके बाद अपने एक्शंस में आ गए, एक्शंस में मतलब पैसा वैसा जमा करके आपने वो सोफा लेके आ गए। तो दिस इज कॉल्ड एडिडा मॉडल, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। आया समझ में? दोनों एग्जांपल्स देके समझाई हूं, अगर दिमाग है तो समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल? दैट इज कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव कॉग्निटिव। पहला है कॉग्निटिव और दूसरा है अफेक्टिव कॉग्निटिव। अब कॉग्निटिव समझाने के लिए जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कॉग्निटिव एक स्किल होता है, लिसनिंग स्किल, बिहेवियरल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, अटेंशन स्किल, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक स्किल है,
ये सब कॉग्निटिव स्किल है। कॉग्निटिव स्किल का मतलब होता है जो इनबिल्ड स्किल है आपका, जो स्किल बिल्ड है आपके अंदर में है, आपने उसे धीरे धीरे डेवलप किया है। जैसे लिसनिंग स्किल एक बहुत बड़ा आर्ट है, इसे हम कॉग्निटिव स्किल में बोलते हैं। बहुत बड़ा आर्ट है। जो सुनना जानते हैं ना, वो बोलना बहुत जबरदस्त जानते हैं। पहले सुनो, इसीलिए कहा जाता है इफ यू वांट टू बी अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी अ वेरी गुड लिसनर। आपको सबसे पहले अच्छा लिसनर होना चाहिए, अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो लिसनर एक कॉग्निटिव स्किल है। कम्युनिकेशन, बात वार्तालाप करना, एक दूसरे के बातचीत करना, वो बहुत बड़ा आर्ट है। आपने किसी सेल्समैन के देखे होंगे कि आपको किस तरह से मोटिवेट, मैंने इंश्योरेंस का एग्जांपल आपको दिया था, लाइफ इंश्योरेंस का। किसी ने कोई प्रोडक्ट आपके घर में सेल करने के लिए आया, आपको पता है, या जो लाइफ पॉलिसी सेल कर रहा है उसे भी पता है कि इंश्योरेंस में पैसा रखना मतलब टोटल टोटल वेस्ट। अगर 25 साल के लिए मैं पैसा रखता हूं मतलब 25 साल वो पैसा मैंने गड्ढे पे डाल दिया, कोई उपाय नहीं है, कुछ भी नहीं है। 25 साल पैसा रखने, आपने अगर हर साल 25,000 24,000 जो भी जमा किया, 25 साल बाद वो आपका 10 लाख 13 लाख रुपया होगा। सबसे बड़ा लॉस है। लेकिन जो इंश्योरेंस आपको बेचने के लिए आएगा, वो इतना सलीके से अपना कम्युनिकेशन पावर से आपको मोटिवेट करेगा, आपको इतना सुंदर वो समझाएगा कि आपको लगेगा क्यों ना मैं ले लूं ये पॉलिसी, अभी अभी मैं ले लूं। बाद में लेने के बाद आप पछताइएगा कि क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तनुजा एंड अभिजीत, दिस इंश्योरेंस कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रॉड कंपनी, बट दे आर द कंपनी हु ट्राई टू, मतलब ट्राई टू जस्ट अ लूट, दे आर द डेकोइट्स, आई कैन सी। अगर ले लिए तो ठीक है, हाँ मेडिकल ले लीजिए, मेडिकल इंश्योरेंस करवा लीजिए, दैट इज, लाइफ इंश्योरेंस करवाने मत जाइए, वो ठग गया पूरा एकदम गया। 25 साल आपका पैसा रहेगा, आप इंटरेस्ट काउंट कीजिएगा ना, आपको 2% या 4% इंटरेस्ट में आपको पैसा मिलेगा, मतलब आपके लिए पूरा टोटल लॉस। लेकिन वो अपने कम्युनिकेशन के जादू से आपको इतना सुंदर प्रभावित कर दिया कि आपने सोचा कि भगवान मेरे लिए ये लाइफ इंश्योरेंस एकदम लाइफ बोर्न है, धून है, आशीर्वाद है, मैं ले लेता हूँ। दिस इज कॉल्ड, दीज आर ऑल कॉल्ड कॉग्निटिव स्किल। तो कॉग्निटिव स्किल जो हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल में कॉग्निटिव जो वर्ड आता है, इसका मतलब लिसनिंग, कम्युनिकेशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, अटेंशन, बिहेवियरल, ये सब गिना जाता है। नेक्स्ट है अफेक्टिव कोनेटिव। अफेक्टिव कोनेटिव मतलब क्या है? कोई आपसे कम्युनिकेट कर रहा है किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, उसका असर आप पर क्या गिर रहा है, इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ इफेक्ट। ठीक है, उसे कहते हैं हायरार्की ऑफ इफेक्ट। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए दुकान में जाते हो, तो सेल्समैन आपसे पूछते हैं, सर जी आपका क्या लेना है? आपने प्लान करके किया कि मुझे ये प्रोडक्ट लेना है, लेकिन सेल्समैन ने अपना दिमाग, आपके दिमाग को 360 घुमा के आपको अच्छा वाला या ज्यादा दाम वाला प्रोडक्ट चिपका देते हैं। दिस इज कॉल्ड हायरार्की इफेक्ट होता है। इट इज बेस्ड, कंप्लीटली बेस्ड ऑन कॉग्निटिव स्किल, दैट इज कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल एंड अटेंशन। ये जाके कॉग्निटिव स्किल होता है। समझ में आ गया? सेकेंड वाला पॉइंट समझ में आ गया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है, समझ में आया? क्लियर? यस यस सर। सर। अच्छा, उसके बाद ये क्या लिखा है? होवर्ट सेट मॉडल, इनपुट, कंस्ट्रक्ट, आउटपुट। दिस इज कॉल्ड होवर्ट सेट मॉडल। ये एमबीए में these all are the given example, these all are the sets of example of someone else references. This hoवर्ट set, and what you can say, maybe a business entrepreneur. He is a business entrepreneur and he has set a different model based on customer feedback. उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है based on customer feedback, salesman feedback, and according to that उन्होंने एक मॉडल तैयार किया है जिस मॉडल का नाम है वर्ड सेट मॉडल। इस मॉडल में इनपुट, कंस्ट्रक्ट्स, आउटपुट। ठीक है, किसी सेल्समैन ने अगर बायर को अपना इनपुट दे दिया, अपना इनपुट का मतलब होता है क्या?
एटीएम में आपने कार्ड इंसर्ट किया, बटन दबाया, पैसा का डाला, आउटपुट आपको पैसा आ गया। पिन नंबर डालने के बाद पैसा आपके हाथ में आ गया। इसी तरह होवर्ड सेथ ने एक मॉडल तैयार किया है कि बायर्स भी एक आउटपुट इनपुट कंस्ट्रक्ट और इनपुट कंस्ट्रक्ट्स एंड आउटपुट की तरह होता है। इनपुट का मतलब होता है सबसे पहले वो इनपुट में क्या डालेगा, एडवर्टाइजमेंट, मोटिवेशन of buying any product, advertisement that he sees about the product, वो इनपुट है। सेल्समैन हमारे दिमाग में ये इनपुट डाल रहा है थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट के बारे में वो हमें इनपुट डाल रहा है। अब कंस्ट्रक्ट वो इनपुट हमारे दिमाग में चल रहा है। उसके बाद आउटपुट क्या आता है, हम वो प्रोडक्ट उठा के लेके आते हैं। इसे कहते हैं होवर्ड सेथ मॉडल। किसी भी बायर्स को इसी तरह से मॉडल में रेफर किया जाता है। हर एक बायर्स जो होता है, कंज्यूमर जो होता है, इसी मॉडल पर आधारित है। सबसे पहले हमारे दिमाग में इनपुट में डाला जाता है, प्रोडक्ट के बारे में इनपुट दिया जाता है कि ये प्रोडक्ट आप खरीदिए, आपको ये फायदा होगा, ये इनपुट हुआ। हमारे दिमाग में वो फिर प्रोडक्ट बार बार चलते रहता है। एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्ट माइंड, वो उस प्रोडक्ट के बारे में हमारे अंदर में पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड तैयार होता है। उसके बाद आउटपुट क्या होता है, हम उस सामान को खरीद के लेके आ जाते हैं। ये है होवर्ड सेथ मॉडल। ओके, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट मॉडल्स ऑफ बायर। पहला एडिडा है, एक्शन, इंटरेस्ट, डिसीजंस, डिजायर, सॉरी नॉट डिसीजंस, डिजायर एंड एक्शन, एडिडा मॉडल। उसके बाद हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स, और उसके बाद होवर्ड सेथ मॉडल। ये थ्री इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ बायर्स है। समझ में आ गया? Yes, Is sir. it clear? Okay. Ma'am, next slide. Factors affecting buyers behavior. अच्छा, ये तो मैंने पढ़ाया था पहले, दो स्लाइड पहले, फिर भी आ गया है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स, फैक्टर अफेक्टिंग बाइंग बिहेवियर। एक बायर्स का किस बिहेवियर के ऊपर निर्भर करता है, क्या अफेक्ट करता है, बिहेवियर क्या अफेक्ट करता है, ठीक है, किस किस बेसिस पे वो बायर्स को इफेक्ट होता है। पहला है एज एंड लाइफ स्टेज। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस हैव डिफरेंट नीड्स। बचपन में हम जब छोटे थे, हमारा प्रेफरेंस कौन देखता था, वी डोंट हैव एनी प्रेफरेंसेस। द प्रेफरेंसेस आर आवर मदर एंड फादर। दे यूज्ड टू टेक अस टू द shop, and whatever they like, they feel, this thing that this cloth is suit to me, they will purchase according to that. But as the goes on, as the age goes on, we became mature. Now we can take the decision of ourselves. Okay, we know that this is my body color and this colors will suit me. If I have a very fair complexions, the light color will suit the best. Few deep colors are there which suit the best, but light color t-shirts or deep yellow, that will going to suit me. With whatever the trousers we used to wear, that is okay, but this will be the my color. This is our taste. Okay, this is my choice of my body complexions. Okay, and according to that, different needs, according to our age preferences, we start to have different needs. Needs means different things we need, because when we are child, we doesn't have any needs, we doesn't have any demand. Whatever our parents thought of us, what we all completely depend on them, na? We are completely dependent on them. So whatever they feed, we eat. Whatever they wear to us, we wear. Whatever they do, according to their merits, according to their decisions, we follow that. But as the age process goes on, suddenly each and everything started changing. So, okay, we purchase the clothes of our own choice, we purchase the bikes of our own choice. Whatever the I desire, I purchase of my own choice. This is called the age and life stages. जैसा जैसा हमारा एज आगे बढ़ता है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता है, हम प्रेफरेंस उसकी अकॉर्डिंग रखते हैं। दूसरा है ऑक्यूपेशन एंड
इनकम, क्या नौकरी हम करते हैं, उसमें हमारा कितना इनकम है, उसमें हम ये प्रोडक्ट अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं, वो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पर्सन वो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। ठीक है, ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया परचेसिंग पावर। ठीक है, अगर मेरा इनकम उतना नहीं है तो मेरा परचेसिंग कैपेसिटी उतना कभी नहीं होगा। मैं हर समय जब भी कुछ लेने के लिए जाऊंगा तो मेरा सबसे पहला ये मोटिव रहेगा कि मुझे 30 दिन ये पैसा चलाना है। तो 30 दिन अगर मुझे पैसा चलाना है तो मैं अगर इतना सामान खरीदता हूँ इतने दामों पर तो मेरा 30 दिन ये चलेगा नहीं, तो मुझे कम दाम में सामान थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑक्यूपेशन और इनकम में डिपेंड होता है, ये एक फैक्टर है। दूसरा है लाइफस्टाइल, आप किस तरह का लाइफस्टाइल लीड करते हो। ओके, लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसेस कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड परचेजिंग डिसीजन। कभी कभी हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो इन्फ्लुएंसेस होता है कंज्यूमर प्रेफरेंस और परचेजिंग डिसीजंस के ऊपर। ठीक है, हम जैसे लाइफस्टाइल लीड करते हैं सब उस एक, फॉर एग्जांपल बहुत जन ऐसा है जो बहुत लैविशली अपना पैसा उड़ाते हैं, लैविश लाइफस्टाइल जीते हैं। ठीक है, तो वो कैसा इन्वेस्ट करेगा, वो पैसा अपना कैसा इन्वेस्ट करेगा, किस तरह का क्वालिटी प्रोडक्ट वो खरीदेगा। डेफिनेटली वो अच्छा से अच्छा क्वालिटी, टॉप से टॉप ब्रांड की क्वालिटी वो अपने घर पे लेके आएगा, क्योंकि उसे पता है कि वो एक्सोटिक लाइफ लीड कर रहा है। घर में अगर एसी रहेगा तो वो स्प्लिट विंडोज डबल 2 टन या 2.5 टन या 3 टन का एसी वो घर में लगाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट उसके पास जो गाड़ी होगा वो भी एक्सक्लूसिव कलेक्शंस की गाड़ी होगा, बिकॉज हाई लेविशिंग लाइफस्टाइल वो लीड कर रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो भी वो सामान खरीदेगा, लेकिन वो 10 बार सोचेगा कि मैं अगर ये 2 टन एसी लगाता हूँ तो मेरा बिजली का खर्चा कितना आता है। हमें 10 बार सोचना है, वी नीड टू थिंक कि अगर मैं ये एसी घर में लगाता हूँ तो हाउ मच आई नीड टू पे एक्स्ट्रा, मेरा पॉकेट के ऊपर भार कितना गिर रहा है, मेरा पर्स के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है, वो मुझे सोचना है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो परचेज होता है। तो ये एक और इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पर्सनैलिटी, व्हाट इज दैट, personality traits such as extraversion, introversion can influence buying behavior। extraversion मतलब है बहुत खर्चीला, बहुत खर्चीला खर्चीला, पैसा उड़ाने लायक। और इंट्रोवर्शन मतलब तो थोड़ा सा कंजूस टाइप का होता है, थोड़ा सा कंजूस नहीं बोल सकता है, तो फिजूल खर्ची नहीं करते हैं। इट डजंट वांट टू स्पेयर अननेसेसरीली। ठीक है, उसे लगता है कि मेहनत करके पैसा इनकम किया जाता है तो अननेसेसरी वो कभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं या फिर ये नहीं करते हैं। इसे कहते हैं पर्सनालिटी ऑफ बाइंग। तो ये होता है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ बाइंग बिहेवियर, एज एंड लाइफ स्टेज, ऑक्यूपेशन एंड इनकम, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, दिस फोर आर इंपॉर्टेंट। समझ में आया? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट मैम। अच्छा, ये भी पढ़ा चुका हूँ, ये फिर रिपीट हुआ है। साइकोलॉजिकल फैक्टर का क्या होता है, जो हमारे दिमाग रिलेटेड है। सबसे पहला साइकोलॉजिकल मीन्स विच आर रिलेटेड टू आवर ब्रेन। वो क्या होता है, नीड, वांट, डिजायर, ड्राइव, कंज्यूमर बिहेवियर। पहला है मोटिवेशन, पहला है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर में क्या क्या आता है, नीड, वांट्स। अच्छा, तनुजा एंड अभिजीत, बोथ ऑफ यू आस्किंग व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट। सर नीड में गूगल मत करना, गूगल मत करना, गूगल नहीं करती हूँ, खुद से बता रही हूँ। बताओ। सर नीड मतलब सर जैसे कि रोटी कपड़ा मकान जरूरत की चीज है एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए, राइट। वो हमारे Okay. लिए बहुत लाइक जो हमें चाहिए। आपने जैसे बोला उसे आपकी उसे क्रेज में गाड़ी चेंज करनी है, वांट इन द मीन तो से उसका रोटी कपड़ा मकान के अलावा हमें अब एक मोबाइल चाहिए, एक फैन चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये होता है वांट। Yes, correct. Both Tanuja and Abhijit both are correct. Tanuja is absolutely correct. Abhijit more correct. रोटी कपड़ा मकान के अलावा जो हम एक्स्ट्रा जो हमारे जरूरत है उसे वांट कहते हैं। यस, और नीड मतलब जरूरत जो है मुझे। वेरी वेरी गुड। बोथ तनुजा एंड अभिजीत, आप लोग दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है। तो
पहले जब सपोज फ्रिज नहीं था, एसी नहीं था, कूलर नहीं था, तब क्या लाइफ नहीं चल रहा था? गर्मी इसी प्रकार तो होते थे, ठीक है, गर्मी इसी तरह से था, तो क्या नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। लेकिन वो अब हमारे जरूरतमंद में आ गया, नीड्स में आ गया। अब ना ये कूलर हुआ, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, ये नीड्स में आ गया, वांट में नहीं आ गया। कैन यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? अगर आपसे कहा आपके घर में कूलर, वो मेरा वांट है, नहीं, गलत है। ये आपकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए। गाड़ी, अभी 2 चक्का गाड़ी, वो मेरा नीड्स है, उसको वांट नहीं कह सकते। वांट किसे कहेंगे? वांट उसे कहेंगे, सपोज से फॉर एग्जांपल आपके पास Vivo Z1 Pro एक फोन है। नाउ यू वांट दैट एप्पल मेरे पास होना चाहिए, दैट इज वांट, दैट इज वांट। एम आई क्लियर? दैट इज वांट। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट नीड्स वांट। हाँ, क्या बोल रहे हो तनुजा, बोलो। सर वो आप बोले ना, तो मैंने बोला यस तो। हाँ, है ना, वांट किसे कहते हैं? आपके पास क्या फोन है, क्या कंपनी का फोन है? सर मोटरोला है। आपके पास मोटरोला है। अगर आप चाहती हो अभी मेरे पास मोटरोला हटा के मैं कुछ और एक्सक्लूसिव फोन की तरफ चला जाऊं, मेरे मोटरोला से नहीं मन कर रहा है, मुझे और चाहिए, तो वो आपके वांट हो गया। एम आई क्लियर? एक्स वो हो गया। डिजायर ड्राइव कंज्यूमर बिहेवियर, ओके, एंड डिजायर ड्राइव कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। डिजायर एक हो गया आपके passion, और कंज्यूमर बिहेवियर गया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हाउ यू बिहेव। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बचपन में जब हमको सामान हमें नहीं मिलता था, से फॉर एग्जांपल हम लोग मम्मी पापा के ऊपर चिल्लाते थे, नर्वस मतलब गुस्सा हो जाते थे, क्यों हमको दिलाइए। तब हमें समझ में नहीं आता है कि अगर वो मेरे पास होता तो शायद आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो मुकाम पे मैं नहीं पहुंच पाता। तभी बहुत गुस्सा आता था। वी यूज्ड टू, मतलब आई यूज्ड टू शाउट ऑन माय मदर एंड फादर that why this product is not given to me. My friend circle have this product. Okay, कुछ ऐसा था. But at that time, my father and mother told that this is not a way. You need to study hard. After study, you succeed in your life, then we will give you. जब धीरे धीरे सक्सेस हुआ, उसके बाद खुद पता चला कि उसके पीछे रीजन कोई नहीं था। फिर जब कमाने लगा, उसके बाद अफोर्ड करने, जब देखा कि मैं अफोर्ड खुद से कर सकता हूँ, तब मैंने वो परचेज जब किया तो मुझे वो सुकून लगा कि यस आई कैन परचेज ऑफ माय ओन, जो मेरे मम्मी पापा ने पहले बताया थे कि खुद पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ फिर लाओ। ये मोबाइल की बात है, ये मोबाइल की बात है। When I was reading in class 10, I used to, मतलब I not fight actually, I used to demand for a good mobile. Okay, we used to have a very dabba wala mobile. We used to have a very simple basic mobile in our home, and obviously it's a natural thing that my friends are using smartphone and I had don't have them. So whenever I used to get to the tuitions and all for my studies, my friend teased me that yeah, Rohit Shankar, you are using this type of dabba phone and all. So I used to come down and share this experience with my father and mother. My father and mother, my guardians told me that this is not a way. You concentrate on your study, standard your own take, and after that you buy. That will going to create a very good desire, satisfaction in your mind. So finally मुझे पता चला कि हाँ, जब मैंने वो लिया उसके बाद मुझे पता चला कि यस, अपने पैसे बलबूते पे खरीदने में कितना मेहनत लगता है, कितना मेहनत लगता है। और हो सकता है पापा के पास उतना फाइनेंशियल अफोर्ड था नहीं कि मुझे उतना कॉस्टली मोबाइल परचेज करवा सके, लेकिन उन्होंने कभी मुझे बोला नहीं कि बेटा मेरे लिए दिक्कत है थोड़ा देने में। अगर ये बोलता मुझे तो मैं कभी उनसे डिमांड नहीं करता, लेकिन वो कभी बोले नहीं मुझे उस तरह से, इसलिए मैंने उस उनके तकलीफ को कभी झाड़ा नहीं। लेकिन जब मैंने उस चीज को खरीदने के लिए गया और मॉडर्न खरीदने के लिए गया, तब मुझे एहसास हुआ, जब मैं कैश पे कर रहा था, देन आई फाइंड कि कितना तकलीफ होता है कि एक पूरा घर परिवार संभालने के बाद इतना सारा कैश जाके एक टेबल पे रख देना और वो चीज लेके आना, हाउ मच डिफिकल्ट फॉर एवरी वन ऑफ अस। तो जब तक हम वो पीरियड पार करके पापा वाला एज में नहीं आएंगे ना, या फिर उनके बराबर ही थोड़ा सा नहीं आएंगे ना, तब तक हमें उसकी अहमियत नहीं पता चलेगा, पैसे की अहमियत नहीं पता चलेगा। Isn't it? It's the best. This is called the behavior. This is called the consumer behavior. Okay. This is motivation and this is called the consumer behavior. Both. मैंने तुम लोगों को motivation भी किया और behavior के बारे में बताया अभी। अगर तुम पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। उसके बाद है perception. How consumer perceive products or services influences purchasing decisions. Okay? क्या लिखा है? How consumer perceive
productions or service influences purchase decisions. Okay, perceptions, that how we motivate ourselves to purchase that product, or how we see ourselves, we perceive, मतलब हमारे दिमाग में क्या ख्यालात आते हैं उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। और हमारा डिसीजंस क्या होता है, हमारा डिसीजंस क्या होता है इस तरह का प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। बोथ आर डिफरेंट थिंग, है ना? समझ लो ये चीज, एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा सा इधर उधर है। हाउ कंज्यूमर परसीव प्रोडक्ट सर्विसेज इन्फ्लुएंसेस परचेजिंग डिसीजंस। आपके दिमाग में जैसा ख्यालात आएगा प्रोडक्ट के बारे में, वैसा ही आपका डिसीजन होगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर बायर का मतलब बायर्स का मोटिवेशन के बारे में बताया है। असल जिंदगी में भी यही है। आप जैसे बोलते हैं ना, जैसा संगत वैसा रंग, एक कहावत है ना हिंदी में, आप लोग सुनते होंगे, जैसा संगत होता है वैसा ही रंग आता है। तो आपके दिमाग में अगर किसी ने बिठा दिया कि ये सामान आपको खरीदना है, आपके दिमाग में वही ख्याल आते रहेगा, ठीक है, वही ख्याल आते रहेगा। और आप जब तक उस प्रोडक्ट को नहीं पालोगे, आपको लगेगा कि वो अधूरा है मेरे लिए, ठीक है। दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, और ये बहुत खतरनाक होता है। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, आई थिंक इट इज। क्योंकि कभी कभी वो चीज अगर हमें नहीं मिलता है ना, तो हम अपना लाइफ को जोखिम में डाल देते हैं। चोरी चकारी करना, डकैती करना, कितना न्यूज आता है। एक मोबाइल के चक्कर में लड़की ने फांसी लगा लिया। रिसेंटली इन मे नहीं, इन द मार्च देयर वाज अ न्यूज ऑफ द गर्ल वाज फ्रॉम सोनाली ओनली। क्लास 10 कंप्लीट हो गया, 12 11 12 में पढ़ रही है लड़की। दोस्तों के साथ वो घर, मतलब एकदम जस्ट दोस्तों के साथ उन्होंने पढ़ाई करके आया। दोस्तों ने मोटिवेट किया कि ये मोबाइल सबसे बेस्ट है, इसमें फ्लैशबैक अच्छा है, कंप्यूटर कैमरा क्वालिटी अच्छा है। घर में आया, दम भर झगड़ा किया, क्योंकि मोबाइल का जो पर्टिकुलर कॉस्ट था, द कॉस्ट वाज नियरली 35 to 40,000, and may her father cannot afford at that particular point of time to give her a cash of 40,000 rupees, because she was studying in class 12 from the school name was Carmel School. Sonali में Carmel School है ना? There was a Carmel School, Sonali. I think you are the Yes, same. sir. So she was reading in class 12, साइंस लेके पढ़ रही है Carmel School। तो फीस बहुत ज्यादा था, एंड तो नहीं दिया। तो रात को खाना खाने के बाद अपने घर में कमरे में गया, और सुबह उठ के जब दरवाजा खोल लिया, दरवाजा तोड़ के अंदर नहीं आ पा रहा है, दरवाजा तोड़ा गया, देखा शी वाज कमिटेड सुसाइड। तो परसेप्शन बहुत खतरनाक चीज है अगर वो गलत दिशा में चला जाता है तो। इसलिए बहुत ध्यान से उस चीज के बारे में ये चलना है। कभी कभी हमें कोई भी मोटिवेट कर देता है बहुत खतरनाक तरीके से, और हम मोटिवेट हो भी जाते हैं, लेकिन उस मोटिवेशन को हम बार बार जीने लगते हैं, उस मोटिवेशन में जीने लगते हैं। जैसा एक गेम आया था, पता है, ऑनलाइन गेम, ब्लू व्हेल ना क्या गेम आया था, मोबाइल गेम, जिसमें लास्ट में लिखा था यू नीड टू कमिट सुसाइड। सुसाइड कर, वो वायरल हो गया गेम, ब्लू व्हेल गेम था। हम एक तनुजा एंड अभिजीत, ये गेम उसी तरह से था। सबसे पहले आपको मोटिवेट करेगा और कुछ टास्क आपको देगा। अंडरस्टैंड दिस थिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मोटिवेशन अगर अच्छा हो तो ठीक है, लो, लेकिन गलत दिशा में मोटिवेट आपको कर रहा है ना, तो उस चीज को कभी एक्सेप्ट मत करना। लाइफ हेल हो जाएगा, एकदम लाइफ हेल। आप लोगों का भी मतलब अभिजीत का तो चलो सर्विस स्टार्ट हो गया, लाइफ नौकरी कर रहा है, लेकिन तनुजा यू आर न्यू, आपका भी कुछ लाइफ में, यू आर कॉलेज student, you are college, you are just in a college. So always those who motivate you, आप मोटिवेशन उन्हीं से लीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए पॉजिटिव होगा, उनसे आप मोटिवेट कीजिए। लेकिन हर कोई अगर आपको मोटिवेट करने लगे और वो मोटिवेशन आपको गलत दिशा में ले जा रहा है, तो ऐसे इंसानों से आप दूर से बच के रहिए। एक गेम आया था ब्लू व्हेल गेम, गूगल में सर्च किया ब्लू व्हेल, कुछ ऐसा गेम। Indian government was banned that game, and apart from that, recently to 2024 में ये गेम सुनने में आया था, फिर चालू हुआ दूसरे नाम से, और बैंगलोर के लड़का ने फिर ऐसा ही किया, द सेम थिंग। जो भी पहले मोटिवेट किया,
उसके बाद बोला कि माँ बाप से बात करना बंद कर दो। लुक एट द स्टेजेस, कैसे मोटिवेट कर रहा है और परसेप्शन उसका दिमाग से किस तरह से खेल रहा है। पहले माँ बाप से बंद कर दो, नहीं, स्टॉप टॉकिंग विद द पेरेंट्स। कितना खतरनाक है। अपार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टास्क, आप ब्लेड से अपने हाथ में कुछ लिखो। ही स्टार्टेड कट, मेक अ कट, डीप कट मार ब्लेड, हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आफ्टर दैट पापा को, मम्मी पापा को तभी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है मेरे बेटे में। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर बोला कुछ भी तो नहीं है, बेटा तो ठीक है, टाइम खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। एट लास्ट लिखा यू नीड टू क्विट। रात में छत में चढ़ा, वहां से जंप कर दिया। दिस कितना पावरफुल होता है सोचो, और कितना खतरनाक होता है कि आपका जीवन तक ले लेता है। बच के रहिए ऐसा। उसके बाद लर्निंग आता है। कंज्यूमर लर्नर अबाउट प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंफॉर्मेशन। हम लर्निंग से सीखते हैं। कभी कभी बाजार में जाते हैं, ठग हो जाता है हमसे, ठग जाते हैं हम। सेल के चक्कर में, कुछ सस्ता चक्कर में हम लोग चल जाते हैं। उसके बगल में आते हैं, बाल्टी में जब पानी डाल के वो कपड़ा चुबाते हैं, उठाते हैं, पूरा रंग निकल जाता है, पूरा एकदम पोछा बन जाता है। तो उससे हम एक्सपीरियंस लेते हैं कि नहीं, हमें इस तरह चीजों से बचना चाहिए। हम सस्ता, ठीक है, पॉकेट फ्रेंडली हम सोचेंगे, लेकिन इतना भी हम नीचे नहीं गिरेंगे, इतना भी सस्ता में हम नहीं जाएंगे कि वो मेरे लिए पोछा के बराबर हो जाए। तो लर्निंग कम बाय एक्सपीरियंस ओनली। द मोर यू लर्न, द मोर यू विल गोइंग टू गेन एक्सपीरियंस। Apart from that, attitude and belief. Always try to keep a positive attitude. Always try to keep a positive attitudes and always try to take examples from other. Okay, I have already told you that आप लोग MBA पढ़ाई कर रहे हो। अब जब भी मार्केट में जाओ, मार्केटिंग रिलेटेड, HR रिलेटेड, ये मार्केटिंग है, जब भी मार्केट रिलेटेड जाओ, आप ऑब्जर्व करो ये सब चीजें। अपने एटीट्यूड को थोड़ा नरम करो, एटीट्यूड थोड़ा सा डाउन करो, देखो ये सब चीजें, बातचीत करो, आपको बहुत कुछ लाइफ में एग्जांपल्स मिलेगा जो कि आपके रिसर्च पेपर है। आप लोग आगे रिसर्च करना चाहते हो, उसमें बहुत आगे जा सकते हो, बहुत बहुत आगे। मतलब आप सोच नहीं सकते हो, आप पूरा मतलब फॉरेन में जाके, फॉरेन में आपको यूनिवर्सिटी आपको बुलाएगा। MBA में अगर आपने HR में रिसर्च किया, मार्केटिंग साइकोलॉजी में रिसर्च किया, ये पैकेजेस हाई होता है। ओके, उसके बाद परसीव नोशंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। उसके बाद आप किस तरह का प्रोडक्ट खरीदते हो, क्या आपको सर्विस दिया जाता है, वो आपके एटीट्यूड के ऊपर रिलाई होता है। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंग बिहेवियर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। समझ में आया? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, आज यहीं स्टॉप करता हूँ। यस सर। ओके, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर।